It is a great pleasure to be here with you all for certificate award ceremony to the ancient city of Srinagar as a World Craft City by the World Crafts Council. I welcome the distinguished guests who have graced the award ceremony with their presence. I take this opportunity to thank Mr. Sadal Kadumi and appreciate the contribution of World Crafts Council for preservation and promotion of the unique cultural and artistic heritage across the world. I wish to commend the efforts of Handloom and Handicraft Department, our artisans, working under the overall supervision of Department of Industries and Commerce for leading the change in this vital sector of our economy. In 2021, Srinagar city was designated as Creative City by UNESCO Creative City Network for Crafts and Folk Arts. This empowered our artisans and contributed to holistic and sustainable development of Srinagar. I am glad that within 3 years, Srinagar city was able to add one more feather in its cap and became one of the 4 cities of the country that have been awarded this prestigious title of World Craft City. Friends, I believe in honoring the Srinagar city. The World Crafts Council has also honored the 5,000-year rich Indian civilization, which kept alive creative traditions and always promoted gifted artisans for their ingenuity and craftsmanship. From that perspective, if you look at Jammu Kashmir, you will see an inclusive cultural ecosystem which has always inspired the weavers and craft people. Jammu Kashmir is known as Crown Jewel of India, not because of its geographical position, but because of its quest for spiritual salvation and its ageless cultural assets, which can be witnessed in the infinite variety of creative products. And I am happy to see this beautiful union territory is fast turning into a hub for handmade products, smart city management, and education. Srinagar and Jammu, the 2 mega cities of the Union Territory in particular, is promoting variety of tangible art forms and have achieved new milestones in innovation and excellence for quality living. I want to see Jammu and Kashmir becoming the best art cities of India. I want to see both the cities claim the title of best home for the artists and favorable destination for seekers of priceless art. We are committed to support the artisans in marketing and exports of handicrafts, handloom products, and promotion of all craft forms. We are also giving greater attention to training of young generation of craftspeople so they can be part of this traditional occupation. We are also determined to ensure that their creative products are financially attractive and the work is professionally satisfying. I am sure this recognition will not only provide a new identity to Srinagar in the global market, but craftsmanship will re-establish its position as a prestigious occupation. मित्रों, हमारी संस्कृति में कला और शिल्प को उच्चतम मूल्य, हायर वैल्यूज माना गया है। अगर हम हायर वैल्यूज और शुद्ध चरित्र न हों तो सृजन संभव नहीं है, और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आर्टिजन समाज के सबसे जागृत लोग होते हैं जिनके भीतर जीवन ऊर्जा अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। हर एक आर्टिजन सही मायने में देखा जाए तो वो सृजन करता है, सृष्टा है, जो छोटे छोटे बारीक धागों को सोना बना सकता है। कनीसाल हो, सोजनी हो, पेपर मासे हो, वॉलनट वुड कार्विंग हो या कला शिल्प की अन्य विधाएं हों,
आर्टिजन्स उन सभी में एक नई जीवंतता पैदा करने की क्षमता रखता है और इसलिए प्रशासन का ये प्रयास है कि क्राफ्ट्स के संरक्षण और उसे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के अभियान में जुटे सभी आर्टिजन्स को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। इसी कड़ी में पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे। आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स की संख्या 60 हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ लगभग 3,80,000 रजिस्टर्ड आर्टिजन्स हैं जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और उसमें भी 76,000 हस्तशिल्प कलाकार पश्मीना से, 55,000 कारपेट वीविंग से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ कलाकारों की इन कृतियों का वास्तविक मूल्य ग्लोबल मार्केट में मिल रही कीमत से कहीं ज़्यादा है। इसलिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब ब्रांड पोजीशनिंग को निश्चित रूप से मजबूत करेगा और श्रीनगर की नई पहचान के द्वारा आर्टिजन्स इंटरनेशनल बायर्स के मार्केटिंग लिंकेज को और मजबूत बनाएगा। अभी तक 10 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग हो चुकी है तथा 12 अन्य क्राफ्ट्स के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। सभी आर्टिजन्स के सामने एक बड़ी समस्या आर्थिक सहायता की रहती है। इस सहायता को सुनियोजित तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं और ये प्रयत्न भविष्य में और तेज होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना पर प्रशासन ने काफ़ी बल दिया है। आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थीं। आज उनकी संख्या बढ़कर 5,682 माने 300 से 5,682 हो गई। माने अगर वृद्धि हम देखें तो 1800% की वृद्धि हुई है। करीब 1239 सोसाइटीज़ ने पिछले वर्ष आर्थिक सहायता भी प्राप्त की है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स रैंकिंग में जम्मू कश्मीर जहां 2020 में 35वें स्थान पर था, 35th पोजीशन पर था, 2022 में हम 17वें स्थान पर 17th पोजीशन पर पहुंच गए। अगली बार जब आंकड़ा आएगा तो हमारी रैंकिंग में और सुधार देखा जाएगा। मित्रों, श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब ऐसे समय मिला है जब जम्मू कश्मीर तेज गति से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और लगभग सभी शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन है। सभी 20 जिलों में यहाँ के चिन्हित प्रोडक्ट्स की विविधता और उनके प्रमोशन पर किए जा रहे प्रयासों की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन राज्यों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे आर्टिजन्स के हुनर, किसान और युवाओं तथा महिलाओं की शक्ति तथा समाज की नई आकांक्षाओं और सामर्थ्य का प्रतीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हर एक सेक्टर में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन ने शहरों और गांवों में वहाँ की कलात्मक विरासत के संरक्षण और इन्वेस्टर्स के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है और वहाँ के क्राफ्ट्स के लिए अपार संभावनाओं और रोजगार के अनंत अवसर भी तैयार किए हैं। मैं समझता हूँ जिस शहर में भी कला संस्कृति की जीवन परंपरा होती है वही शहर गतिशील होता है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी आज जम्मू कश्मीर की चर्चा देश में हो रही है। श्रीनगर शहर तो मॉडर्न और प्राचीन विरासत का एक मिला जुला स्वरूप बन चुका है। 5 साल पहले और आज
कि जम्मू कश्मीर पर मुझे एक बशीर बद्र साहब की एक शेर याद आ रही है। वो 5 साल पहले के लिए है अजीब शहर की ज़िंदगी, न सफ़र रहा न क़याम है अजीब शहर की ज़िंदगी, न सफ़र रहा न क़याम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। लेकिन आज अगर मैं कहूँगा तो श्रीनगर सही मायने में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आज यह शहर अपनी कला के साथ साथ वाइब्रेंट शाम और नाइट लाइफ के लिए भी चर्चा में है। चाहे पोलो व्यू का पेडेस्ट्रियन मार्केट हो, डल लेक का किनारा हो, लाल चौक हो या झेलम का रिवर फ्रंट हो, इस शहर का मिजाज और हवा ये दोनों बदल गई है। और तब मुझे अहमद महफूज साहब का एक शेर याद आता है, सुना है शहर का नक्शा बदल गया महफूज, सुना है शहर का नक्शा बदल गया महफूज, तो चल के हम भी जरा अपने घर को देखते हैं। जब श्रीनगर के गुलकदे जैसी सुंदरता आई है और कलाकारों तथा कलात्मक प्रोडक्ट्स के खरीदारों के लिए इससे बेहतर जगह भला और क्या हो सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जम्मू कश्मीर पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर रैंकिंग हासिल कर चुका है और डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर इन्वेस्टर्स के लिए आज भरोसे का दूसरा नाम बन गया है। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के भीतर और देश के अन्य हिस्सों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी काफ़ी प्रयास हुआ है और उसका बड़ा लाभ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को भी मिला है। गांव और शहरों के बीच ईज ऑफ मोबिलिटी की वजह से टूरिज़्म सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर पर हस्तशिल्प विलेज इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर की विरासत और कला के पोटेंशियल को 100% रियलाइज़ करने में हम सभी लोग मिलकर सफल होंगे और श्रीनगर के क्राफ्ट्स के विस्तार और विकास को और आगे ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। आर्टिजन्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड के अवसर प्रदान करने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन में भी इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप वो अपनी क्षमता विकसित कर सकें। मैं एक बार पुनः कला शिल्प परंपराओं की सेवा में जुटे जो हमारे आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। मेरी कामना है कि श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब, उसके सम्मान में आयोजित आज का समारोह जम्मू कश्मीर के विरासत के संरक्षण और संवर्धन में एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन हस्तकलाओं के प्रशिक्षण, डिज़ाइन, आर्थिक सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। मैं सभी आर्टिजन्स को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि प्रशासन आपके साथ खड़ा है और निरंतर आपके सहयोग के लिए तत्पर है। अंत में I compliment the Department of Industries and truly appreciate the dedication of World Crafts Council for its effort to inspire artistic traditions of this city. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.